everyone, this is Gain, and today I'm here excited to have a chat with an aspiring GS candidate for UPSU 2026 to 2029. I hope this chat will be informative, inspiring, and also will help the voters to have better understanding of the candidate. Yes. So let's see how it goes. Hello, Bing. Hi. Welcome. Thank you. Have a seat. So, Bing, how are you? I'm fine. तो आप यहाँ पे आके like how are you feeling? Excited. Very much excited. Excited ना? तो आप अपना दिखाएगा viewers को ना कि आप कैसे है आपका manifesto and like why are you like deserving candidate ना? Yes, तो yes. okay इसको छोड़ो आप introduce कीजिए अपना खुद को. Okay. Okay. Thank you again for having me here. My name is Nun Pertun. I'm aspiring candidate for General Secretary APSU 2026 to 2029 session. And I'm from Dambuk, and Dambuk is the orange ball of state. So Bing, Yes. चलो थोड़ा serious हो जाएगा ना? चलो. होगा? Okay. Don't be nervous, okay? Okay. Okay. So as a candidate, like every candidate has like one aim, certain goal, or you can say manifesto, ना? तो आपका manifesto क्या है? वो थोड़ा मेरा viewers लोगों को बता दो. Okay. Again, when we talk about manifesto, till today, my manifesto is on the process of making, and it will be completed by this month 31st January. तो उस मैनिफेस्टो का बारे अभी इतना तो कहने के लिए तो नहीं है, but I have one manifesto which I have instructed my team to put in. That one is the job reservation policy in our state. The 80-20 ratio should be cut off. It should be 100%. When the state of Mizoram, Nagaland, and Assam can have the criteria as a PRC as a criteria to fill up a form to any competitive exam, then why should not we can do that? तो इसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि APPSCE में और APSSB there should be 100% reserve policy for our APST. Okay. So like yeah, वो ठीक है 100% like I also support. But आपको क्यों लगता है कि 100% ST को ही मतलब PST को ही होना है? बाकी का क्या बाकी लोग like they are not allowed, outsiders are. No, with the passing time जो हमारा अनएम्प्लॉयड का इशू दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन, बट ऑल आर बीइंग अनएम्प्लॉयड. तो जब हम देखता है तो अभी मेरा जब दूसरा स्टेट ने भी ऐसा किया तो हमको भी तो उस वे में तो जाना है, टाइम का साथ एडजस्ट तो करना पड़ेगा. हर किसी को हम जैसे असम, मिजोरम, नागालैंड ने किया है तो उसको हम लोग भी फॉलो अप करना ज़रूरी है. तो लास्ट टाइम देखा एग्ज़ाम में तो नॉन APST वर टॉपर्स, तो अच्छा तो लगता है, लेकिन कभी कभी लगता है उस जगह में कोई मेरा अपना APST होता. तो सिंपल ऐसे ह्यूमन इंस्टिंक्ट, हम ऐसे लीडर ऑफ स्टेट, हम तो स्टेट का बारे ही तो बताना पड़ेगा. Okay, so like your manifesto is like 100% job reservation for only APST, na? Yes. Okay. In these two exams. Two exams. Yes, this competitive exam, Okay. APPSCE and this APPSSB. And also you have mentioned like your other manifesto like on process है बोल के, तो वो अब तो अभी nomination file होने वाला होगा ना, election आने वाला है, तो like अब थोड़ा लेट नहीं हो गया उसके लिए? Like No, actually हम लेट तो नहीं लगता है क्योंकि RGU is still not open. It will be open after 25 only. तो उसमें टीम ने जो है कलेक्शन करना शुरू कर रहा है, तो अभी तक फिनिशिंग स्टेज में है. तो बाय 31 we will display it, and we are going to open camp on 29 at Amba. okay. This near I think Revival Church at Amba. Okay, so tell me like आपका capabilities like
आप एक एस्पायरिंग जीएस कैंडिडेट है ना, तो आपका कैपेबिलिटीज एज ए जीएस क्या है? लाइक व्हाट विल यू डू फॉर लाइक द स्टूडेंट्स ऑफ अरुणाचल? लाइक व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज? I think my experience, एक्सपीरियंस 18 years of experience in student okay, union. I was the editor college magazine of JNC College Pasigat during 2008 and 9. And 2010 to 13, I was the president of Dibang Adi Student Union. It is basically for our lower Dibang Valley only. Till 2016 to 2022, I was the speaker of Lower Dibang Valley District Student Union. And the longest serving period, that was on Corona time. And after 2025 to 2022 and 25, I was the secretary debate and symposium of APSU. तो जो एक्सपीरियंस हमने किया तो उसमें हम सोचते हैं कि आई कैन बी ए गुड कैंडिडेट फॉर जनरल सेक्रेटरी. ओके, सो यू आर टेलिंग दैट कि अभी आप जो पोजीशन में है, यू आर लाइक मैच्योर इनफ टू हैंडल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना स्टूडेंट के लिए. ओके, सो NEP 2020, हैव यू हर्ड अबाउट इट? यस यस. ओके, सो उसमें एक है वोकेशनल एजुकेशन बोलकर. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट वोकेशनल एजुकेशन? इसमें जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाया जाता है 2020 NEP में, सुनने तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर से पेपर में है. तो वोकेशनल का कोर्सेज को हमने भी मेरा कैंपेन में स्ट्रेस देगा, क्योंकि हम जितना तक देखा है जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाया जाता है बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में देयर इज इशू. अगर इफ़ आई एम गॉट इलेक्टेड, उसको लेटर एंड स्पीच में लागू कराना है, और उसको किसी भी हालत में मेरा टीम उसको अभी ज़रूर कराएगा. ओके, वही सिर्फ आजकल ऐसा होता है कि BA डिग्री ना MA डिग्री ये सब होने से तो जॉब नहीं मिलते हैं, क्योंकि हर किसी को इट्स लाइक गवर्नमेंट जॉब इज नॉट पॉसिबल ना. और कोई कोई ऐसे होते लैक ऑफ अवेयरनेस के उसमें जैसे कि ऑर्नामेंट्स का वीविंग लाइक सबका इसमें भी फोकस करना जरूरी है. तो लेकिन वो इन प्रैक्टिकल स्कूल में नहीं हो रहा है, लेकिन कागज़ पे तो है NEP पे. दैट मीन्स देयर इज लेकुनिया. तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए हम आ रहा है. व्हाई शुड वोटर्स ट्रस्ट यू ओवर लाइक अदर कैंडिडेट्स? कैंडिडेट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना GS में, आई थिंक. तो उसको छोड़ के मतलब वोटर्स लोग आपको क्यों वोट देगा? जैसे पहले बोला था, मेरा एक्सपीरियंस, और आपसू ऐसा नहीं है कि आप जोश में ही हर कोई काम करेगा. आपसू जो है बहुत सब एंगल को मिलाना पड़ता है. स्टेट बहुत डाइवर्स है हमारा. तो जो एक्सपीरियंस हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, तो वोटर्स खुद से जानेगा कि कैपेबिलिटी एग्जैक्ट इन द सेंस वो भी नहीं है. जब आप हमसे कनेक्ट करेगा, जब हमसे बातचीत करना शुरू करेगा, तो हमको बिलीव है कि वो लोग शायद हमसे कन्विंस होगा. जो भी दूसरा कैंडिडेट होता भी होगा तो वो भी तो गलत है ऐसा नहीं है, वो लोग भी दे में भी कैपेबल. सो यू आर सेइंग दैट आप जो आपका एक्सपीरियंस को ट्रस्ट करते हैं, बाकी का तो पता नहीं, लेकिन यू हैव दैट इंस्टिंक्ट कि आप जो अच्छा लीडर बनेगा ना. यस. ओके, सो उसी का ये क्वेश्चन के ऊपर या हम सुना है कि लाइक और 2 या 3 आई थिंक आधी कैंडिडेट उतरे ना GS में. अभी तो आधी है ना, तो और आ रहे, तो उस आपका राय क्या है? लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? इट इज़ हेल्दी डेमोक्रेसी. ऐसा नहीं है कि यहाँ आदीसू इलेक्शन नहीं चल रहा है. अपसू इलेक्शन में तो हर कोई कम्युनिटी पार्टिसिपेट करता है. ऐसे आदि हम GS में ही सिर्फ क्यों आना है, बाकी पोस्ट में भी आ सकता है. लेकिन अभी का जो इसमें डबल ट्रिपल बात है, मेरा हिसाब से ये हेल्दी डेमोक्रेसी है. कोई भी आ सकता है, और मेरा डिस्ट्रिक्ट अलग है, उसका डिस्ट्रिक्ट अलग है. देख वो लोग का मर्जी है. वो लोग का मर्जी है ना. ओके, सो वो भी एक
मे बी पॉजिटिव साइन है ना कि मेरा आगे हिसाब से पॉजिटिव हाँ, साइन है। जैसे आदि कम्युनिटी को बहुत सारा लीडर्स लोग जो एस्पायरिंग लीडर्स लोग जो वो करना चाहते हैं, लाइक आगे बढ़ना चाहते हैं ना। हाँ, उसमें आपका एक टीम कमिटमेंट, हाँ जो आपका जो पीछे में जो वर्कर्स है हाँ हाँ उसका डेडिकेशन वही से जीतेगा। पर्टिकुलर आदि कम्युनिटी तो आपको नहीं जिता सकता है। जो आपका साथ टीम स्पिरिट जो है वो टीम ही आपको जिता पाएगा। एग्जाम्पल लास्ट टाइम 2022 का इलेक्शन में आपने देखा, कुछ से शायद विटनेस किया, one was Ritum Thali and Achi Margaruba. Both are from Galo community, but Ritum Thali won because शायद उसका टीम डेडिकेटेड था। तो इन दिस वे हम भी बिलीव करते हैं कि मेरा जो टीम है उसका जिल को देखकर हम तो कहीं हारने का जगह दिखाई नहीं देता है। ओके, सो यू आर टेलिंग दैट आपका टीम जो पूरा जोरदार में है ना, हाँ, तो जीतने के लिए पूरा रेडी है। रेडी है, पूरा तैयार रेडी है। ओके ओके बिंग, सो इफ ओके, सो आप उसको नेगेटिव में मत लीजिए। श्योर इफ यू लूज दिस इलेक्शन, सो क्या आगे क्या, लाइक अब क्या हो जाएगा, लाइक छोड़ देगा ना, आगे बढ़ेगा? वो फर्स्ट थिंग इज दैट हमको कहीं जगह पे भी हारने का जगह तो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, एंड माय टीम इज कॉन्फिडेंट ऑन दैट। हाँ, बाई चांस अगर हार भी जाता है तो जो हमसे जीतेगा तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हिम, क्योंकि उसको मैंडेट मिला है। तो हम भी कोशिश करेगा कि जो उसने मैनिफेस्टो दिया उसको फुलफिल करना है। हम ईगो को साइड करके उसका साथ काम करना चाहेगा। तो दिस वे चलेगा। हार गया तो साइड हो जाएगा, जीता तो काम करेगा, ऐसा भी तो नहीं है। क्योंकि हार जीत तो होते रहते हैं ना, होते रहता है। और मे द बेस्ट कैंडिडेट विन ना। यस। ओके, सो उसका ऑपोजिट, लाइक जैसे अगर आप जीत गया ना जीत जाएगा तो जीत गया तो लाइक what will be your first step? तो होल मैनिफेस्टो जहाँ में हम 31 जनवरी तक बनाने जा रहा है, इन लेटर स्पिन एवरी पॉइंट्स विल बी फुलफिल्ड। that will be also in time bound manner। ओके, ऐसा नहीं है कि सबको लंबा चौड़ा खींच जाएगा। जब हम एग्जिट होने जा रहा है 3 years का टेन्यूर में, लास्ट ईयर में हम डिमांड प्लेसिंग करेगा वो नहीं। जब ही जीत के आएगा तब साथ हाँ, डायरेक्ट सीधा, हाँ, तब से शुरू। डायरेक्ट शुरू ना। मार्क माई वोट, इफ आई गॉट इलेक्टेड विदिन 6 months जो मैनिफेस्टो में देगा सब में काम करना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट से टॉकिंग पॉइंट आ जाएगा। आप देखिए उसमें कि हाँ, दिस यूनियन इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, आपको दिखाएगा उसको। ओके, सो व्यूअर्स, 6 months बिल ने बोला है 6 month के बाद डायरेक्ट उसके अंदर ही डायरेक्ट काम करना स्टार्ट करेगा बिल। रिजल्ट आना शुरू होगा। ओके, रिजल्ट आना शुरू होगा। सो मार्क हिज वर्ड्स। एंड ऑल्सो उससे याद आया, बिल आप बोला कि 3 साल है तो ना टेन्योर जो। ओके, सो 3 साल में लाइक आपको नहीं लगता 3 साल बहुत कम है, या लाइक इज इट ओके, लाइक टेन्योर जो काम करने के लिए, आपका मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए? एक्चुअली हम 3 years को भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लगता है? काम करना है तो 2 years इज मोर देन इनफ। ओके, 3 साल क्यों? 3 साल तो मेरा हिसाब से चल तो रहा है, उसमें आई एम फॉलोइंग, जहाँ ये क्या बोलता है उसको, जहाँ हवा है वहीं पे जा रहा है 3 years में। लेकिन इन माई पर्सनल ओपिनियन आई वुड प्रिपेयर 2 years होना चाहिए। ऐसा ना? हाँ, ओके, आपसू का टेन्यूर जो है। तब क्या होता है कि ये जो हर साल बोलता है कि फाइनेंशियल का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो भी कहीं ना कहीं घटते जाएगा। तो इस तरह का हम सोचता है, लेकिन ये मेरा अकेले से तो नहीं होगा। एक कलेक्टिव एफर्ट, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट होता है, 7 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, सब वही रूल बनाता है। जब हम इंडक्ट हो जाएगा ऐसे जनरल सेक्रेटरी, तो फर्स्ट दिन से ही शुरू होगा। 6 months का अंदर में रिजल्ट आना शुरू होगा। ये नहीं है कि सब कुछ फुलफिल हो जाएगा, वो नहीं, लेकिन रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ओके, सो
आप जीत गया, मान लो आप जीत गया, जितना ही चाहिए। तो जैसे आप जीत गया ना, तो आप पॉलिसी जैसे आप बोला APST वाला 100% वाला है ना, जॉब वाला आप बोला था। तो फॉर एग्जांपल उसको ही ले लो, आप जीत गया तो आप एक पॉलिसी डालेगा कि 100% APST को मतलब जॉब में डालना है ना। तो वो अगर फेल हो गया, आपका टेन्योर में फेल हो गया, तो क्या आप क्या करेगा? मार्क माई वोट, ये फुलफिल होगा, Fulfill होगा। हाँ, श्योर, यस, ग्रांटेड 100%। 100%। अगर नहीं हुआ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता है। 2 साल का अंदर नहीं कर पाया, रिजाइन कर दिया। ओके, सो व्यूअर्स, और एक 2 साल में हमारा बिंग नून ने बोला है कि 2 साल में अपना पॉलिसी को वो जो क्या करेगा, डाल के ही छोड़ेगा 2 साल में। अगर 2 साल में नहीं हुआ तो यू विल स्पेसिफिक जो एग्जाम का हाँ देगा, स्पेसिफिक वो वाला 100% जॉब वाला ना। हाँ। तो 2 साल में देन यू विल रिजाइन। यस, पर्सनल या आपका ये सीरियस क्वेश्चन को थोड़ा साइड करेगा, उसके बाद थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछेगा ना, चलो, तो कंफर्टेबल होगा कंफर्टेबल ना? ओके, सो जैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन होता है ना, कभी खुशी कभी गम होता है। तो आपका लाइफ में लाइक कभी डिफिकल्ट लाइक डिसीजन, लाइक डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट डिसीजन दैट यू हैड टू मेक एंड लाइक व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट, लाइक ये जो अभी आपका क्वेश्चन है उसको अगर हम डिस्क्राइब करने से, आई थिंक जो मेरा कुछ ये 14-15 डेज में रहा, जो टफ टाइम गुजरा, तो उसमें मेरा एक बहुत गलत एक डिसीजन था कि शायद मैंने गलत लिया ना पॉजिटिव लिया। उसमें एक तरह का से हम फेक करेज दिखा रहा था अपना टीम को लेकर। फेक करेज, क्योंकि उसमें ऐसा था कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट से रिकमेंडेशन होता है, तो उसमें कुछ इशू आ गया था। जो मेरा साथ था till जनवरी 9 से वो मेरा कैम्प से दूर हो गया। मतलब आपका टीम से दूर हो गया? एक्चुअली दूर भी नहीं हुआ, लेकिन भी ना रिस्पॉन्स ऐसा हो के, तो फिर वो जो है फिर टिकट इशूइंग अथॉरिटी हो रहा था, रिकमेंडेशन इशूइंग अथॉरिटी। तो लेकिन ऐसा था कि मेरा टीम का जो एक ये होता है ना, सब डाउन हो गया था। तो लेकिन हम बोल रहा था उसमें कि नो, हम फेक करेज दिखा रहा था खुद का, कुछ नहीं होगा, टिकट विल बी रिकमेंडेड। ऐसा करके चलते गया। तो अल्टीमेटली PBB के माई सोसाइटी, पर्टिन बोडुम बाने कबांग एंड अंगोंग सोसाइटी, एंड मेरा माँ भी अंगोंग सोसाइटी है। तो फिर रिंगोंग सोसाइटी, रिंगोंग में लिटिल लुबांग सब आता है। तो ये तीनों का सोसाइटी का इंटरफेरेंस का कारण, और 20 में जो अंगोंग सोसाइटी ने एक रिसोल्यूशन लिया कि नून पर्टिन को देना जरूरी है बोल के। 20 जनवरी 20 हाँ, तो उसका चलते ही हमको मिला है। और तो इसके लिए वो लोग को हम तहे दिल से थैंक यू बोलता है। तो उसमें ऐसा था कि जो फेक करेज जो हम दिखा रहा था, तो मैंने ये ठान लिया था कि नहीं, किसी भी हालत में ये जो हम प्रॉमिस कर रहा है कि हमको रिकमेंडेशन मिलेगा, तो उसका पीछे जो कहता है ना कभी कोई, जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरा कायनात मिल जोड़ने में, समथिंग लाइक दैट। तो उस फेक करेज को लेकर मैंने आगे कंटिन्यू किया, तो फाइनली सक्सेस हो गया। ओके, तो एनओसी नहीं मिला था, तो इसलिए आपका 14 डेज लाइक यू वेर ऑन लाइक दिस वन, फ्रीज हो गया था आपको ना, आप और आपका ये टीम लोग, कि आगे जाओ या ना जाओ ना। तो फिर जनवरी 20 को फाइनल हो गया। हाँ, तो अभी आप डायरेक्ट है कैंडिडेट है। ओके, देन ये आप जो ट्रिग्नोमेट्री बोला है, मेंशन किया है, वो मतलब वो क्या है? लाइक मेरा एक ट्रिगोनोमेट्री बोल के एक फैमिली है। ओके, तो वो बाय सेल्फ फंडिंग, तो हर साल हम लोग जाता है। इस बार हम लोग वेस्ट कमिंग गया था, तो उस वेस्ट कमिंग में जाके हमने स्कूल पेंटिंग कराया, उसमें ट्रिजिनो में, और फिर हमने पिकनिकिंग किया, सब विलेज को इंट्रैक्शन किया,
गोम्पा में जो ठंडा दिन का गर्म कपड़ा ओके वो सब डोनेट किया, ऐसा करके छोटा इन स्मॉल वे बट वेरी इफेक्टिव वे। तो ऐसा करके अब हमारा टीम में ऑलमोस्ट एंटर ट्राइब आवर स्टेट वो तो है साथ में ग्रुप में। तो थॉमस जेरांग इज आल्सो द मेंबर फ्रॉम दैट ट्रिगोनोमेट्री एंड हम भी है। ओके तो द अदर कैंडिडेट ना फॉर जीएस द सेम कैंडिडेट ऑपोजिंग कैंडिडेट Okay, so माय राइवल नॉट राइवल for now you guys are rival no but आप बोल रहे कि आप लोग साथ में है तो you guys are also friends यस यस okay that's interesting like दोस्त जो एक ही पोस्ट के लिए वो हो रहा है ना so okay so अब क्या क्या है मतलब आपका ओपिनियन क्या है इसमें, आप क्या फील करते हैं आपका जिसका साथ आप काम कर रहा था एक कम्युनिटी के लिए काम कर रहा था तो उसी के साथ ही अभी थोड़ा सा हल्का सा ऐसा कुछ अनबन नहीं है हमारा अनबन बीच नहीं में है, कुछ वर्कर्स है जो एक दूसरा को चिढ़ाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम दोनों पर्सनली रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा वो भी हमको पर्सनली विश करता है, हम भी करता है, तो कहीं हम लोग जाके साथ में मिलके भी बैठता है, तब कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमारा बीच में। ओके लेकिन कोई कोई है जो अननेसेसरी क्रिएट करने के लिए कोशिश करता है। होते हैं बाहर बाहर का ना हाँ। जो आप लोग का रिलेशनशिप को मालूम नहीं होगा तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो जैसे आप दोनों बोला कि आप दोनों दोस्त थे लाइक रिलेशनशिप अच्छा है दोनों का ना आप दोनों का एक दूसरे से, तो हम एक ऐसे पूछ देगा लाइक व्हाट डू यू फील लाइक आप ज़्यादा बेटर कैंडिडेट है ना वो ज़्यादा बेटर कैंडिडेट है? He is better on his own way. I am better in my own way. Okay. No more questions. Okay. So Bin, आपको लाइक कैसे लग रहा है लाइक क्वेश्चन हम दोनों ऐसे चैट करके? I am enjoying. अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? Okay. So बिफोर लाइक खत्म करने से पहले आई फील लाइक एक बहुत ट्रेंडिंग वाला मतलब बहुत साल से ट्रेंडिंग है एक ये स्टेट का कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा पकड़ लिया तो उसका क्या है मतलब आपका ओपिनियन क्या है उसमें, आप थोड़ा बता देने से हम लोग व्यूअर्स को तो वोटर्स लोग भी थोड़ा ना मालूम चल जाए। Okay, straight from the heart. हाँ I am taking Changma Hajong issue secondary. सेकेंडरी My priority will be for student only. ओके ठीक है, चंगमा हाजोंग इशू जो है वो भी हो करना तो है, हाँ लेकिन इम्पोर्टेंट जरूर है, लेकिन दैट इज स्टेट सब्जेक्ट। स्टूडेंट आपसू लीडर जो है स्टूडेंट के लिए ही तो प्रायोरिटी देना पड़ेगा, तो माय फोकस प्रायोरिटी विल बी देयर। चंगमा हाजोंग भी साइड बाय साइड, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बहुत बार देखा, अभी दिल का बात है, सुन सुन के हम भी बड़ा हो गया। अभी ऐसा फील होता है कि हो गया चंगमा हाजोंग। शायद हर कोई भी बोर हो रहा होगा, हर एक टेन्यूर आता है चंगमा हाजोंग का बारे में बात करता है, कुछ इनिशिएटिव ही नहीं लेते हैं, हो ही नहीं फिर रहा ना, हर कोई अपसू लीडर बदल जाता है, चंगमा हाजोंग इशू नहीं बदलता ऐसे है। ही रह जाता है। लेकिन चंगमा हाजोंग इशू जो है एक्चुअली कोर्ट पे है, तो इसमें हम इतना ज़्यादा भी नहीं बोल सकता है। और ये भी सच है कि आपसू का वजह से ही ये इशू चंगमा हाजोंग जो है यहाँ में APST जैसा कन्वर्ट नहीं हो पाया, या में सिटीजनशिप नहीं मिल पाया, वो भी है, वो क्रेडिबिलिटी भी है आपसू का। ठीक है, तो लाइक ये चंगमा हाजोंग वाला केस को सेकेंडरी रखेगा आप, हाँ, द मेन secondary. फोकस विल बी ऑन Student स्टूडेंट priority, डेवलपमेंट ना। हाँ। सो यही था हम लोग का या इंटरव्यू भी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल कैजुअल चैट टू नो लाइक मोर कैंडिडेट के बारे में ना। तो फिर नेक्स्ट टाइम भी बात करेंगे। हाँ ओके, सो आप कुछ मेरा व्यूअर्स लोग को कुछ बोलना चाहेगा या कुछ भी कैजुअली इफ यू वांट टू से एनीथिंग यू कैन। ओके, थैंक यू। तो अभिलाष है, तो व्यूअर्स को ये बताना चाहेगा कि मेरा नाम नून परतीन है। इफ़ यू फील हम डिजर्विंग है, यू काइंडली वोट फॉर मी। अगर आप डिजर्विंग नहीं लगता है तो यू कैन चूज़ द बेटर वन, और बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, जुड़ेंगे।
तो मेरा कैंप ओपनिंग 29 जनवरी को होगा TBC चर्च का सामने अम्बा में। तो वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करके अगर आप मेरा पॉइंट को अच्छा लगता है और हम दोनों एक दूसरा को कनेक्ट कर पा सक रहा है तो वी कैन गो फॉरवर्ड एक साथ। और बाई 31 जनवरी माई मैनिफेस्टो जो है इट विल बी ओपन फॉर यू ऑल। तो अभी का समय अगर आपको ना ये मैनिफेस्टो को इंक्लूड करना है तो यू कैन गिव सजेशन। आई हैव पेज फेसबुक देयर, तो उसमें भी फॉलो करिए। तो इवन इन दिस पॉडकास्ट ऑल्सो यू कैन राइट क्या मैनिफेस्टो लिखना चाहिए, एज ए आइडियल कैंडिडेट लीडर क्या करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। So thank you everyone.